Hello and welcome back to my YouTube channel, and in this video we are going to continue with our first chapter of political science, that is the world since 1991. So in this part we are going to discuss about the European Union. This is one of the important regional organization, and I think this is having more weightage in your textbook because you are if you compare this organization with other organization which is given in your textbook, तो यूरोपियन यूनियन के बारे में ज़्यादा दिया है, सो आपको उसके बारे में बताना है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है. सो वी आर गोइंग टू study Brexit also in this video, so I will discuss about Brexit in the end. Also we are after doing completion of this chapter, I'm going to upload the remaining two questions which were remaining two questions from the exercise of this chapter. Okay, after completion of this chapter. So if you have not subscribed this channel, then subscribe it and click the bell icon and उसकी setting जो है वो all पे करो, so you will receive the notification. Now we are going to discuss about trade bloc because last video में हम लोग ट्रेड ब्लॉक की तरह रुके थे. सो अ ट्रेड ब्लॉक इज क्रिएटेड व्हेन अ ग्रुप ऑफ नेशंस मेक स्पेशल अग्रीमेंट्स रिगार्डिंग देयर इकोनॉमिक रिलेशनशिप regarding their economic relationship with each other. The agreements generally focus on relaxation or elimination of the trade barriers. The most common type of trade barriers are tariffs, that is the taxes on imports, and quotas, that is the limits on quantities of various imports. So this is simple, आपको समझ जाएगा वैसे पढ़ के भी, बट मैं I'll explain. Okay, ट्रेड ब्लॉक क्या होता है? जब एक ग्रुप होती है इंटर गवर्नमेंटल मतलब ट्रेड जो एग्रीमेंट्स रहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है तो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है तो इनमें एक अग्रीमेंट रहता है, और ब्रिक्स की जितने भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर्स है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, देन उनमें ये ट्रेड ब्लॉक क्रिएट होगा एंड इसमें ये लोग अग्रीमेंट साइन करेंगे. क्यों? रिलैक्सेशन और एलिमिनेशन ऑफ ट्रेड बैरियर्स, इनके इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए ट्रेड बैरियर. और इसमें ट्रेड ब्लॉक में भी बहुत सारे टाइप्स रहते हैं. सो बेसिकली द मोस्ट कॉमन टाइप्स है वो है ट्रेड टैरिफ्स, मतलब टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट. अगर हम लोग कुछ इम्पोर्ट कर रहे हैं तो उस पर टैक्स लगाते हैं, तो एक तो उसको एलिमिनेट करना है या फिर कुछ कम लगाना है. एंड कोटाज मतलब लिमिट्स ऑन क्वांटिटीज ऑफ वेरियस इम्पोर्ट. जब हम लोग कुछ चीज़ इम्पोर्ट कर रहे हैं देन वी विल पुट लिमिट, लाइक अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स वी आर इम्पोर्टिंग देन वी विल ओनली इम्पोर्ट दिस मच क्वांटिटी, 30%, 80%. okay, this is called as quotas, right? So let us take a survey of some of the important regional organizations in the post Cold War era. So in this slide we are going to discuss about the European Union overview or the background. So after the end of bipolar structure we have seen unipolarity, जिसमें अमेरिका का डोमिनेंस था, डोमिनेंट पोजीशन पे थी अमेरिका. एंड नाउ बिकॉज ऑफ दिस लाइक बहुत सारे लोगों को अभी पता चला, लाइक सी डिवाइडेड वी फॉल एंड यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल, जैसे कि पता है आप लोगों को ये एक फ्रेज. सो सिमिलरली वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी ऐसे ही कुछ था, एक यूनाइटेड स्टेट का इतना डोमिनेंस था. सो इसीलिए 1990s के एरा में इट बिकम क्लियर दैट alternative centers of political and economic power could only limit its dominance, America's dominance. So alternative centers क्या थे? The organization like European Union हुआ यूरोप में, एशिया में आसियान हुआ. बिकॉज देखो जब भी ऐसे यूरोप के लोग दे वर लाइक वेरी मतलब सॉरी. So these European peoples or their European leaders, they were very grappled with the question of Europe. So because of this ये जो पार्ट है PPT में, so ये वाला आपके बुक में नहीं है. I have just written few points. So European integration after 1945 was aided by Cold War. America extended massive financial help for reviewing Europe's economy under what was called as Marshall Plan. So Marshall Plan साइन किया गया था एंड अमेरिका ने देखो ये स्पेशली दे हेल्प वेस्टर्न यूरोप, बिकॉज यू हैव सीन कि डिसइंटीग्रेशन हुआ तभी लेफ्ट वेस्ट और ईस्ट में हुआ था. सो वेस्ट वॉज फ्रॉम दी अमेरिका साइड.
तो इसलिए वेस्टर्न यूरोप को ज़्यादा हेल्प किया था अमेरिका ने, एंड इट एक्सटेंडेड अ मैसिव हेल्प अंडर मार्शल प्लान. द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948 टू चैनल द एड टू वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स. तो मैंने ये क्रोनोलॉजी के लिए दिया है जस्ट. ये आपके बुक में वैसे भी नहीं है. द काउंसिल ऑफ यूरोप वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949 was another step forward in a political cooperation. It was an alternative center of economic and political power. Now see, जैसे यूरोप का इंटीग्रेशन हुआ, देन अमेरिका को चैलेंज करने वाला एक यही था ऑर्गेनाइजेशन यूरोप, बिकॉज दिस वाज द सेकेंड. इसकी जो जीडीपी थी यूरोपियन यूनियन की, इट इज़ $17 ट्रिलियन. दिस इज अकॉर्डिंग टू 2060, राइट. ये तभी का नहीं है, बट इट वाज पावरफुल. अभी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर का ये भी एक सेंटर बन गया था. सो दे यूज टू डिस्कस अबाउट द यूरोप. नाउ अमेरिका पूरा डोमिनेट नहीं करता था बिकॉज ऑफ राइज ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड राइज ऑफ चाइना 90. सो वी हैव सीन द ड्रामेटिक राइज ऑफ चाइना, जिसपे इकोनॉमी राइज हुई, एंड दिस वॉज दी लाइक चाइना वॉज स्टैंडिंग. मैंने एक वीडियो में पिक्चर्स भी डाले थे कार्टून टाइप. इफ़ पॉसिबल आई विल ड्रॉप डाउन द लिंक ऑफ दैट वीडियो. उसमें पिक्चर्स है रिगार्डिंग, मतलब कार्टून्स है रिगार्डिंग द इंटरनेशनल इश्यूज जो भी थे. सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. इफ़ यू कैन वॉच देन वॉच दैट वीडियो. And now what we are going to discuss about the next. Okay, this is the flag of European Union. So now we are going to discuss about the European Union. The Second World War, followed by the Cold War, gave rise to the constant instability which has always motivated the European countries to come together. It is on the basis of the European Union was established. So if you see, there was a constant instability in Europe and during the Second World War and even also Cold War. हम लोगों ने देखा जर्मनी जो है डिवाइड हो गए इन ईस्ट एंड वेस्ट, और जर्मनी का कैपिटल बर्लिन वो भी डिवाइड हुआ ईस्ट एंड वेस्ट. पूरा यूरोप डिवाइड हुआ ईस्ट एंड वेस्ट. सो ये डिवीजन में ना यूरोप वॉज ग्रैपल्ड विद मैनी क्वेश्चंस, एंड सो बिकॉज ऑफ दिस यूरोप वॉज मोटिवेटेड टू कम टुगेदर, बिकॉज ऐसे इसमें बहुत सारे इन लोगों की इकोनॉमिक लॉस भी हो रहे थे. सो द मेन रीज़न फॉर गेटिंग यूनाइटेड वॉज फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन. It is on this basis the European Union was established. So one was to come together for building their own economy. This was the main motto. So the European Union began as an organization which wanted to foster the economic cooperation. I hope that you are having books with you and pencil with you, so you can underline the things. Okay, the idea being that the countries that trade with one another become economically interdependent and so more likely to avoid the conflict. सो व्हाट इज़ द मेन रीज़न. जब आप यूरोप का अगर मैप देखोगे, सो जब ये इतना डिवीज़न होता था पहले, सो ये लोगों को इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट था एक दूसरे के साथ. अगर सपोज़ इटली में कुछ चीज़ मिलती है, फ्रांस में कुछ चीज़ मिलती है, सो इट वाज इम्पॉर्टेंट कि उनमें वो ट्रेड चले. एंड ट्रेड चले बिकॉज व्हेन ट्रेड नहीं चलेगा देन आपके चांसेस है कि आप में कॉन्फ्लिक्ट हो कुछ इश्यू से. जब ट्रेड अच्छे से चलता है, सो जो ऐसे कुछ इश्यूज है उसको ज़रा साइडलाइन किया जाता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस जो कॉन्फ्लिक्ट्स है या वॉर है आपस की कंट्रीज़ में या फिर नेबरिंग कंट्रीज़ में, वो कम होता है एंड जो इश्यूज़ है वो नेगोशिएट करके सॉल्व किए जा सकते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस इंटरडिपेंडेंस जब बढ़ जाता है एक कंट्री का दूसरे कंट्री के ऊपर या एक कंट्री का बहुत सारे कंट्रीज़ के ऊपर, सो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता. सो द यूरोपियन या फिर अवॉइड होता है अगर ऐसे कुछ सिचुएशन हो तो. सो द यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी एंड द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी वर क्रिएटेड फॉर दिस पर्पज़ इन 1951 एंड 1957 रिस्पेक्टिवली. सो ECSC, रिमेंबर द फुल फॉर्म एंड रिमेंबर द ईयर. ये फॉर्म हुआ 1951 में और इकोनॉमिक कम्युनिटी यूरोप की इट वाज इन 1957. सो रिमेंबर
रिमेंबर द डेट्स प्रॉपरली, इट कैन कम फॉर फिल इन द ब्लैंक्स, राइट. सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लेटर दिस वेरियस ऑर्गेनाइजेशन मर्ज टुगेदर एंड वर रेफर्ड टू एज द यूरोपियन कम्युनिटी. सो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है ये एक साथ आए, और जैसे कि हम लोगों ने देखा जो यूरोप का स्टार्टिंग का जो था ऑर्गेनाइजेशन जो OEEC था, या फिर जो भी यूरोप का स्टार्टिंग के जो शुरुआत की थी, सो उसमें थोड़ा पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ थे. सो इट वाज इम्पॉर्टेंट कि थोड़ा ईस्टर्न कंट्रीज़ को भी यूरोप के साथ लेके आए. सो नॉट ऑल कंट्रीज़ वर इंटरेस्टेड बिकॉज इसमें जो यूरोप का यूनियन है वो बाद में क्रिएट हुआ, एंड यूरोप के यूनियन में जो भी कंट्रीज़ है यूरोपियन यूनियन के पार्ट की, उसका जो लॉ है वो कंट्रीज़ को अबाइड करना होता है. एंड इफ दे बिकॉज दैट लॉ ऑफ EU becomes more important than your law of the country. सो आपके कंट्री के लॉ से ज़्यादा आपको EU का जो लॉ है वो अबाइड करना होगा, और वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाएगा. सो द पीपल आर लाइक बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं है चीज़ें जो EU का कॉमन करेंसी हो गया यूरो, सबको ऐसे पसंद नहीं है. यूरोप के हर एक कंट्री को पसंद नहीं यूरो यूज़ करना, या फिर जो maastricht ट्रीटी है तो UK स्वीडन एंड ऐसे कुछ कंट्रीज़ है जो ये चीज़ों को maastricht ट्रीटी हुआ या फिर यूरो एक कॉमन करेंसी है इसको रेजिस्ट करते हैं, ये चीज़ों को रेजिस्ट करते हैं, राइट. सो इन 1973 एन अग्रीमेंट, एक मिनट, रिमेंबर दिस डेट्स जो भी यहाँ पे अंडरलाइन किए हैं, जो ऊपर में मैंने बोले थे आप कहीं पे लिख लो या फिर रिमेंबर देट. सो इन 1973 एन अग्रीमेंट वाज साइन टू क्रिएट द यूरोपियन पार्लियामेंट. सो यूरोप ऐसे बहुत सारी चीज़ें कॉमन करना चाहता है, जैसे कॉमन करेंसी, यूरोप का पार्लियामेंट, एंड ऑल्सो दे आर ट्राइंग टू क्रिएट एन कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी तक सफल नहीं हुआ. सो दे आर नॉट एबल टू क्रिएट द कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन. ये भी एक एम है यूरोपियन यूनियन का, टू क्रिएट एन कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ नॉट पॉसिबल टिल डेट. Next, the process of creating a single market for the European Union began in 1980s and was completed in 1993. So this thing was started for creating, इन लोगों को कॉमन मार्केट करना था, मतलब ट्रेड ज़्यादा फ्लरिश हो एंड जो इकोनॉमी है इसकी ज़्यादा बढ़े. एंड यूरोपियन यूनियन की कंबाइंड इकोनॉमी इफ़ यू सी इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट, इट इज़ $17 ट्रिलियन अकॉर्डिंग टू 2006 का GDP ग्रोथ. सो इट इज़ मोर, ओके, इट इज़ मैक्सिमम, ज़्यादा है, सेकेंड लार्जेस्ट है ये. सो द maastricht treaty was signed on 7th February 1992. Remember the date when was maastricht treaty signed? 7 February 1992. सो टू क्रिएट द यूरोपियन यूनियन. एंड फाइनली ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस थे ये मर्ज होते गए, जैसे कि कोल एंड स्टील कम्युनिटी हुआ यूरोप का इकोनॉमिक कम्युनिटी, और ये सब छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन मर्ज होकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना वो यूरोपियन कम्युनिटी. एंड आफ्टर साइनिंग दिस ट्रीटी एक कॉमन यूनियन बना यूरोपियन यूनियन. Now we are studying about it. So how इसका हिस्ट्री देखा, how it evolved. So now यूरोपियन यूनियन का मेन मोटो था, it was for economic cooperation it was established. Now धीरे धीरे it is also gaining some political power and it is increasingly evolving from time to time. जैसे कि it was पहले for economic cooperation. Now it is it increasingly having power in the political one. So next is this treaty led to the expansion of spheres of the cooperation, which now included internal affairs, judicial matters, foreign and defense policy. So many of the countries which are the part of European Union, they are having a common foreign policy or common security policy in dealing with other nations. So दिस इज़ वन पार्ट ऑफ EU की जो भी EU के मेंबर्स हैं ये लोग एक कॉमन पॉलिसी फॉलो करते हैं फॉर इट्स इंटरनल अफेयर्स, जुडिशियल मैटर्स एंड फॉरेन एंड डिफेंस पॉलिसी. सो बिकॉज ऑफ दिस ट्रीटी
The treaty led to the creation of an economic union which had a common currency, the euro. Now we are going to study about euro. The euro, see this is the sign of euro, is an official currency. So out of 28 countries, which 19 countries are only using euro. बाकी कई country use नहीं कर रहे. They are resisting the euro. They don't want euro as a common currency. They want their nation's currency. They are not accepting euro. So जो all together 19 countries है उनको हम लोग यूरोजोन बोलते हैं. These countries are collectively known as यूरोजोन. जो 19 countries है जो यूरो एज अ करेंसी एक्सेप्ट करती है, नेशनल करेंसी वो उसको फॉलो करती है एंड वो यूज़ करती है, उसको हम लोग बोलते हैं यूरोजोन. वो कंट्रीज़ को 19 कंट्रीज़ को. द प्रोसेस ऑफ यूरोपियन कोऑपरेशन बिगिन एज प्योरली इकोनॉमिक यूनियन एंड सी रिमेंबर प्योरली इकोनॉमिक यूनियन. अगर कुछ भी फिल इन द ब्लैंक्स या कुछ भी क्वेश्चन आए ट्रू और फॉल्स, रिमेंबर इट प्योरली स्टार्टेड एज एन इकोनॉमिक यूनियन. इनको सिर्फ इकोनॉमी पढ़ानी थी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना था. देन लेटर इट इवॉल्व्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद वेरियस पॉलिसीज एरियाज लाइक क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट, हेल्थ, external relations, security and migration. So as I have said these things even before that the European Union has tried to expand its area. Like यहाँ पे हम लोगों ने देखा climate change या ये health issues, migration issues सब discuss होते हैं इधर. So it has tried to expand its areas of cooperation while and it जो Eastern Europe के states थे, it was पहले Soviet bloc के side के थे वो लोग Eastern Europe के. So they are trying to acquire new members, especially from the Eastern Europe. The process has now it is not proved easy for people in many countries are not very enthusiastic in giving the EU powers that were exercised by the government of their country. So most of the countries from the erstwhile Soviet bloc, मतलब जो सोवियत यूनियन के साइड के थे, जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, सब लोग एंथुसियास्टिक नहीं है यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने, बिकॉज दे आर नॉट एंथुसियास्टिक कि जो गवर्नमेंट उनके पावर एक्सरसाइज करते वो सब उनको EU को दे दे, क्योंकि EU को अपने जो लॉ है कंट्री का उससे भी जो लॉ है EU का अवॉइड करना इट इज़ इम्पॉर्टेंट. इट इज़ प्राइमरी EU का लॉ, जो भी यूरोपियन यूनियन के पार्ट हैं वो कंट्रीज़ को EU का लॉ अवॉइड करना, दिस इज़ देयर प्राइमरी थिंग एंड देन उनके कंट्री का लॉ आता है. इवन टॉकिंग अबाउट EC यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस जो हम आगे पढ़ेंगे. सो बिकॉज ऑफ दिस जब ये लोगों को यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनाया जाता है, जो सोवियत ब्लॉक के पहले साइड के थे यूरोपियन कंट्रीज, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, तो इनको थोड़ा मतलब पावर्स दैट वर जो एक्सरसाइज करते हैं इन लोगों को बोलते हैं लाइक आपको नहीं बनना है यूरोपियन मतलब यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनो, आप यूरो भले ही करेंसी डोंट यूज़ इट. इसलिए हम लोग देखेंगे कि कुछ कंट्रीज़ है जो 19 कंट्रीज़ है वो ही सिर्फ यूरो एज अ करेंसी दे आर एक्सेप्टिंग, नॉट ऑल द कंट्रीज आर एक्सेप्टिंग इट. अगर शेंगन पार्ट भी देखें कि शेंगन एरिया में जो फ्रीली मूव कर सकते हैं वो एरिया में वो सब कंट्रीज एक्सेप्ट नहीं कर रही है. सो दिस इज़ दी एक्सपांड करते हो जो EU है उसको एक्सपांड तो करना है बट उनके सब लॉज अबाइड नहीं हो सकते, तो उधर कुछ रिलैक्सेशन भी दे देते हैं EU. ओके, EU ऑर्गेनाइजेशन. इसके वजह से ही आपके जो बुक में है मैप से इतने सारे शेंगन एरिया का या फिर यूरोजोन का. नाउ ये मैप जो है आपके टेक्स्ट बुक में ये है यूरोजोन का. सो यहाँ पे दिया EU मेंबर इन द यूरोजोन. ये आप मैप देख लेना कौन सी कंट्रीज़ है जो यूरो एज अ करेंसी एक्सेप्ट करती है और EU का पार्ट होके भी यूरो करेंसी कुछ जो कंट्रीज़ है वो एक्सेप्ट नहीं करती है. सो नाउ यहाँ पे दिया है आपको एक्टिविटी मेक अ लिस्ट ऑफ द कंट्रीज हु आर पार्ट ऑफ द यूरोजोन एंड यहाँ पे भी आपको पहले इधर दिया था हु आर द मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन. तो आपको वो पता चलेगा कि कौन सा कंट्री यूरोपियन यूनियन का है, मतलब आपको वो क्लियर हो जाएगा, राइट. सो आप उस आपके नोटबुक में लिख लो, आपको मिल जाएगा किधर भी. So the creation of the Schengen area is one of the greatest achievements of the EU. The Schengen Agreement covering the abolishment of internal borders between the countries was signed in 1985. The agreement was signed by the 5 European countries: France, Germany, remember this, France, Germany, Belgium, Luxembourg and Netherlands. इन शेंगन, अभी शेंगन एक स्मॉल टाउन है किधर, लग्जमबर्ग का एक स्मॉल टाउन है शेंगन नाम का,
इसलिए ये एग्रीमेंट को बोला जाता है शेंगन। रिमेंबर द कंट्रीज यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग एंड नेदरलैंड्स। सो दिस इज़ नोन एज द शेंगन एरिया बिकॉज ये जो ट्रीटी इनका साइन हुआ था वो शेंगन, जो कि लग्जमबर्ग में आता है, साउथ लग्जमबर्ग में, इसलिए इसको शेंगन बोला जाता है। सो द शेंगन वीज़ा इज़ द मोस्ट कॉमन वीज़ा फॉर यूरोप। द शेंगन एरिया इज़ एन एरिया विदाउट इंटरनल बॉर्डर्स। इन दिस एरिया नेशनल्स ऑफ EU, मतलब EU के जो नेशनल है, EU के जितने भी कंट्रीज है उसके जो सिटीजन है या फिर इवन नॉन EU सिटीजन्स, जो बिजनेस, नॉन EU नेशनल मतलब वहाँ पे रहते भी नहीं है बट दे आर बिजनेस पीपल और दे आर टूरिस्ट, दे कैन ट्रैवल फ्रॉम कंट्री टू कंट्री वेरी फ्रीली. So they do not have to go through very checks and controls when they pass from one country to another country. Today remember कितने total 22 out of 28 countries of European Union are the part of Schengen area. So this is the map of the Schengen area. You can see this on the screen or also you can open your textbook and you can see. So इसमें 22 कंट्रीज है शेंगन एरिया में, और जो फाउंडर कंट्रीज भी याद रखना कौन सी, नेदरलैंड्स, लग्जमबर्ग और नेदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, फ्रांस एंड जर्मनी. दीज आर द कंट्रीज. नाउ वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूरो करेंसी के बारे में. द यूरो वॉज launched in world money market on 1st January 1999. It became the unit of exchange for all for the EU state except, देखो मैंने बोला था UK, स्वीडन एंड डेनमार्क, दे आर रजिस्टरिंग द यूरो एज इट्स करेंसी. सो ये उनकी जो कंट्री के जो करेंसी है वही फॉलो करते हैं. दे आर नॉट एक्सेप्टिंग यूरो करेंसी. The geographic and economic region consist of all EU countries that have fully incorporated the euro as their national currency is known as eurozone. जो मैप है हमारे टेक्स्ट बुक में इधर, जो फुल्ली यूरो जिसने एक्सेप्ट किया है वो 19 कंट्रीज़ को यूरोजोन बोला जाता है. सो अभी हम लोगों ने शेंगन वीज़ा के बारे में देखा था पहले, उससे पहले स्लाइड में, यूरो से पहले स्लाइड में. सो ये शेंगन वीज़ा, शेंगन एरिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके लिए एक स्पेशल वीज़ा रहता है, वो है शेंगन वीज़ा. और शेंगन वीज़ा अलाउज एलिजिबल इंडिविजुअल टू ट्रैवल फ्रीली फ्रॉम 26 पार्टिसिपेंट शेंगन एरिया कंट्री. दिस मीन्स travelers in Europe will not be subject to border checks and internal Schengen borders and enter various Schengen countries directly. So इनको बॉर्डर पे हर चेक नहीं किया जाएगा. So इनके पास अगर वीज़ा है तो ये लोग फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं किधर भी विद इन दिस 26 जो भी शेंगन कंट्रीज़ है उनके इधर ही पास. तो आपको एक क्वेश्चन आता होगा क्योंकि पेज नंबर 10 जो है उस पर दिया है कि टुडे 22 आउट ऑफ 28 कंट्रीज ऑफ EU आर द पार्ट ऑफ शेंगन एरिया. तो प्रॉपरली पढ़ो, EU के जितने भी मेंबर्स है 22 वो पार्ट है. तो आपको लगेगा कि 23, 24, 25, 26 मतलब बाकी के 4 कंट्रीज़ का शेंगन एरिया के पार्ट कैसे. सो जो बाकी के 4 कंट्रीज़ हैं वो EU का पार्ट नहीं है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, बट वहाँ पे भी इन लोगों ने एग्रीमेंट साइन किया है. इसलिए वो जो ट्रैवलर्स है या जो बिजनेस पर्सन है या फिर EU के नेशनल्स है, दे कैन ट्रैवल अगर इनके पास वो वीज़ा होगा तो. इसीलिए यहाँ पे 26 दिया है और ऊपर जो है यहाँ पे 26 पार्टिसिपेटिंग शेंगन एरिया लिखा है. यहाँ पे 26 यूरोपियन यूनियन नहीं लिखा है, ऊपर लिखा है 22 कंट्रीज आउट ऑफ 28 कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन. मतलब 22 यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ हैं जो शेंगन वीज़ा के एग्रीमेंट साइन किए हैं, एंड जो बचे हुए कंट्रीज़ हैं वो EU के नेशनल है. इसलिए आपको एक मैप भी दिया है आपके बुक में, उधर स्पेशली दिया है. ऑन दिस मैप यहाँ पे दिया है शेंगन एंड EU मेंबर, मतलब जिसने शेंगन भी एग्रीमेंट साइन किया है और EU का मेंबर भी है. एंड EU मेंबर्स बट नॉट अ शेंगन मेंबर, मतलब EU का है बट जिसको पसंद नहीं है कि विदाउट एनी चेक हमारे कंट्री में हम लोग घुसने नहीं देंगे. एंड जो थर्ड है वो मेंबर ऑफ शेंगन बट नॉट EU. ये जो है ये EU के मेंबर ही नहीं है, बट ये लोग अपनी कंट्री में जो ट्रैवलर्स है, विजिटर्स है, उनको देते हैं बिकॉज इन लोगों ने शेंगन एग्रीमेंट साइन किया है. ओके.